So good morning all. Continuing with your definition. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Good sir. good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. So molded means inside to inside. Good Molded morning, जैसे sir. आप आइसक्रीम खाते हो या भाई अब गर्मियां आ गई आइसक्रीम खाओगे तो जो कोन की आइसक्रीम है कोन में डाल दी तो कोन के इंटरनल डायमेंशन जो होंगे वो मोल्डेड है उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है तो हमने उसको साइड की थिकनेस को नहीं लिया कोन की थिकनेस को नहीं सिमिलरली मोल्डेड में जो भी करेंगे वो बेस लाइन से अब ले रहे हैं सपोज मोल्डेड डेप्थ है तो डिफाइंड एज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वेसल एट शिप साइड फ्रॉम अपर डेक जैसे डेक लाइन है टू द इनर साइड ऑफ द बेस लाइन जो कल बताया था सो दैट इज द मोल्डेड डेप्थ एक्सट्रीम डेप्थ विल बी टू बिलो द कील so the molded depth will be from deck line to the inner side of the baseline. Now we'll come to the molded beam. Molded beam is inside of the ship's plating to inside of the ship's plating. So if we have a double hull, then the outer hull, we are not taking the inner hull there. The molded breadth will be from the inner side of the outer hull to inner side of the outer hull on the starboard side. That is molded breadth. So molded beam is defined as the maximum dimension from side to side measured from inside of shell plating to inside of shell plating on the other side. तो शेल प्लेटिंग की थिकनेस को हम नहीं ले रहे. ये मोल्डेड बीम हो गया इनसाइड टू इनसाइड, मोल्डेड डेप्थ हो गया डेक लाइन टू इनसाइड ऑफ द बेस लाइन. अब आता है मोल्डेड ड्राफ्ट. So molded draft is defined as a vertical distance between the top of the keel. तो कील के ऊपर वाली that is baseline से to the designed summer load line. So normally it is measured at the midship area. So इसमें molded draft में we are not taking the thickness of the keel. So we are taking from the baseline to the summer load line. So molded draft for summer load line is from summer load line to the top of the keel or the baseline at midships. So यहाँ आपका molded depth आ गया from your deck line, क्योंकि camber को नहीं ले रहे हैं हम, deck line से ले रहे हैं. deck line से baseline तक molded depth आ गया. deck अपने summer load line से baseline तक molded draft आ गया. freeboard हो गया from load line till deck line is your freeboard. Design draft will be from your summer load line to your under the keel. So design draft or maximum draft is for summer will be from summer load line to below the keel. Okay, so that is the things. So design water line, agar summer load line is design water line, so that is your design water line. Dead rise आपको बता दिया. Rise of floor is dead rise. Molded breadth की आधी ये वाली है, full पूरा आएगा. Tumble is the inward curvature of the outer shell above your summer load line. इसके ऊपर shear हो गया the curvature, upward curvature of your upper deck in the longitudinal direction, that is 4.5 direction. Forward shear is twice of half shear. ये पूरा रिवीजन हो गया आपके डेफिनेशंस का. तो एक्सट्रीम डेप्थ क्या आता है? एक्सट्रीम डेप्थ आता है from the ship side at deck line to the lowermost part of the ship, that is outside the keel. कील के नीचे एक्सट्रीम डेप्थ आएगा, यूज आएगा फॉर अंडर कील क्लियरेंस. एंड फॉर शिप साइड हल प्लेटिंग यू रिक्वायर एक्सट्रीम डेप्थ, क्योंकि आपको पूरी पेंट करना है. तो ये हो गया एक्सट्रीम डेप्थ.
एक्सट्रीम बीम क्या हो गया? आउटसाइड ऑफ द हल प्लेटिंग टू आउटसाइड ऑफ द हल प्लेटिंग, क्योंकि आपको ड्राई डॉक में एंटर करना है, पनामा कैनाल एंटर करना है, स्विस कैनाल एंटर करना है, या कोई दूसरा कैनाल एंटर करना है, तो आपकी एक्सट्रीम बीम को मेजर किया जाएगा. So it is defined as the maximum dimension from side to side measured from outside of shell plating to outside of shell plating on the other side, and it is the maximum breadth at amidships at the parallel middle body. Parallel middle body का extreme breadth जो होता है, that is maximum breadth. तो एक्सट्रीम ब्रेथ बाहर से बाहर तक, मोल्डेड ब्रेथ अंदर से अंदर तक, और rise of floor or dead rise will be upward curvature of the bottom plating in the athwartship direction. Molded depth आ गया from deck line to the base line. Molded draft आ गया from the summer load line to the base line. Maximum draft आ गया from summer load line to under the keel. Freeboard आ गया from summer load line to deck line. ठीक है, तो ये सारे आपके, और कैम्बर विल बी, कैम्बर इज द डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ द डेक प्लेटिंग इन द अथवार्डशिप डायरेक्शन. तो सारे डेफिनेशंस आपके इस डायग्राम में आ गए. एक्सट्रीम ड्राफ्ट हमने कर दिया फ्रॉम द लो सरफेस ऑफ द कीलियर, हमने कर दिया ऑलरेडी. सो मोल्डेड डेप्थ का क्या यूज है, एक्सट्रीम डेप्थ का क्या यूज है? तो मोल्डेड डेप्थ का यूज हो गया आपके कार्गो के लिए, एक्सट्रीम डेप्थ का यूज हो गया और योर अंडर कील क्लियरेंस, और दूसरा पेंटिंग के लिए यूज ऑफ मोल्डेड बीम फॉर कार्गो, बेल स्पेस एंड, क्योंकि जनरल कार्गो में बेल स्पेस एंड क्यूबिक कैपेसिटी होता था, ग्रेन स्पेस के लिए तो मोल्डेड बीम आता था. कैम्बर is the downward curvature of the upper deck plating in the transverse or athwartship direction. Advantages of flare. First advantage was your reserve buoyancy when you're diving the ship. Because of the heavy seas, it'll come back fast. Second was anchors will fall clear of the ship side plating. Third was increase in your deck for increase of space on deck for stations, and also increase of the store, forepeak store. Molded depth is the depth from the key from the deck line to the base line. So that is your molded depth. So definitions में कोई question? Definition में कोई question आपको? No, sir. No, sir. No, na. So we'll start with your stresses, or please remind Mr. Sanjeev to send me the email ID so that I can send you your notes. So उनको जरा remind कर दो कि मुझे email IDs आपके भेज दें so that मैं आपको notes भेज दूं. Copy that, sir. Okay. Now what is forward shear? चलो ये बताओ, what is forward shear? ये आंसर आप करो. और what is the role of dead rise? ये दोनों आंसर आप लोग करोगे. रोल ऑफ डेड राइज क्या है? याद नहीं है सर वाटर को सेंटर में डालने के लिए होता है सर, ताकि हम पंप आउट कर पाए. लाना, हाँ, क्योंकि पहले आपके पंप इतने अच्छे नहीं थे, फ्रेमो पंप टाइप के नहीं थे, तो डेड राइज होता था तो सो दैट सेंटर लाइन में हम बिल्ज पंप लगा दें तो सारा पानी साइड से सेंटर पे आ जाए. तो हम उसको कर्वेचर दे रहे थे, अपवर्ड कर्वेचर of the bottom plating at the transversely, so that the water can flow to the center line for bilges to pumped out by the bilge pump. Okay, now what is forward shear? अभी मैंने बताया था
शेयर के बारे Sir, में it अभी is आपको the रिमाइंड upward curvature of the ship's upward deck. not the ship, not The the ship. longitude, in Upward the curvature of the longitude. deck plating in the forward section longitudinally. 4.5 में ना 4.5 डायरेक्शन का ये अपवर्ड कर्वेचर है, थ्वाट शिप Yes. का नहीं है. So that your green seas can be shipped, can be drained towards the center line और कैम्बर से वो ड्रेन हो जाएंगे स्कपर की तरफ. कैम्बर तो उनका अपवर्ड शिप्स में आपका डायरेक्शन में है अपवर्ड कर्वेचर, तो ये ड्रेन करेंगे मिडशिप की तरफ और वहां से कैम्बर आपको पानी को ड्रेन कर देगा टुवर्ड्स द स्कपर. तो इसका रोल था फॉरवर्ड शेयर. और क्यों इट इज ट्वाइस ऑफ हाफ शेयर? क्योंकि पानी ज्यादा आगे से आता है, पीछे से नहीं आता. और पीछे से जो पानी आता है उसका टर्म पता क्या होता है? बताया हुआ था, चलो फिर एक बार पूछ लेता हूं. पूपिंग, वेरी गुड. इसीलिए उसका नाम पूप डेक है. अब पूप का मतलब क्या है, अब ये भी बता देते हैं पूप क्या होता है. पूप बेसिकली मींस टॉयलेट. तो पहले जो होता था टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो वो पोर्टेबल टॉयलेट्स को पूप डेक पे लगा देते थे टॉयलेट करने के लिए. तो उसका नाम पूप डेक हो गया क्योंकि वहां से टॉयलेट करते थे. ठीक है, इसीलिए उसका नाम पूप डेक हुआ. और फिर वहां से पानी पीछे कैसे आएगा, उसको पूपिंग कहते हैं. तो सारा आपको बता दिया पूप डेक कैसे आया और पूपिंग क्या है. हमारे जहाज में भी जब आई बिलीव इन कालिदास व्हेन वी हैड गॉन टू रोजी एंकरेज इन गुजरात, so we were loading break bulk. So this was multi-purpose vessel, containerized कम जनरल कार्गो. तो काफी क्रू, काफी शोर गैंग आया था ग्रेन डिस्चार्जिंग के लिए. तो पोर्टेबल टॉयलेट्स हमने पूप डेक पे लगाए थे हैंगिंग आउटसाइड, क्योंकि उनको अलाउड नहीं कर रहे थे टॉयलेट्स हमारे यूज करने के लिए. तो पोर्टेबल टॉयलेट्स हमने पूप डेक पे लगाए थे. अब हम स्ट्रेसेस पे आएंगे. तो जरा मैं डायग्राम बनाता हूँ स्ट्रेसेस का. ये बनाओ इसको ऐसे ही, जो मैं कर रहा हूँ वो आप ऐसे ही लिखो, तो आपके पास आ जाएगा कि स्ट्रेसेस कितने होते हैं. तो पहले टाइप ऑफ स्ट्रेसेस कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज हॉग सैग.
आप लिखो, इसको कॉपी में लिखो। कई बार आपके पेपर में आते हैं कि सारे स्ट्रेसेस बनाओ, तो पहले आप शॉर्ट में ये बना दो, उसके बाद पूरा लिखो।
तो सारे स्ट्रेसेस मैंने लिख दिए हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट करो, देन वील स्टार्ट विद द स्ट्रेसेस। एक मिनट ज़रा सेव कर लूँ, फिर आप लिख लो। गायब भी हो गया, एक सेकंड, मैंने सेव किया हुआ है। दूसरे साइड के सर। क्या पूछ रहे? पहले बना लो अपनी कॉपी में, फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे।
यस सर, कॉपी कर लिया सर। सर हो गया। तो हॉगिंग जो आपको पता है कि जब वो बेंड कर जाता है ऊपर के डायरेक्शन में, आपके वेट्स एंड में ज़्यादा होते हैं, सेंटर में कम होते हैं, तो शिप बेंड कर जाता है सेंटर में अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट इज हॉगिंग। सो द बॉयंसी अमिड शिप्स, बिकॉज आपका जो शिप रहता है, अब मैं आपको जरा डायग्राम से पहले समझा देता हूँ। अब हमारे पहले चलो आई विल जस्ट शो यू डायरेक्शन, क्या क्या आपके शिप पे क्या क्या स्टिल वाटर में फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं। नाउ द फोर्सेस एक्सपीरियंस इन स्टिल वाटर, इसको जरा कलर चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं और लाइट करें। ओके, नाउ द फोर्सेस एक्सपीरियंस इन स्टिल वाटर, एक तो आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी चलता है यहाँ, तो यहाँ आपका इधर लगेगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, यहाँ लगेगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, यहाँ लग रहा है। मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, एक फॉरवर्ड पॉइंट, आउट पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट। मिडशिप पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे आपका वेट लग रहा है, वेट्स लग रहा है। अब एक्चुअली जो फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉयंसी, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दिस इज योर एफ बी, फोर्स ऑफ बॉयंसी यहाँ एक्ट कर रहा है, और यहाँ जो एक्ट कर रहा है वो नीचे में फोर्स ऑफ ग्रेविटी कर रहा है। बाकी जगह मैं नहीं लिखूंगा, एक जगह लिख दिया बहुत है। अब बाकी डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ आपका ग्रेविटी ऐड कर रहा है, यहाँ भी आपका ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो ये स्टिल वाटर कंडीशंस हैं। अभी क्या हो रहा है, स्टिल वाटर कंडीशंस में force of gravity at various points is equal to force of buoyancy. In still water conditions, force of gravity acting downwards from
center of gravity is equal to force of buoyancy एक्टिविटी नहीं है, एक्टिंग डाउनवर्ड्स होगा। is equal to force of buoyancy acting upwards from center of buoyancy। तो जब भी एक चीज इवन अपना फ्लोट कर रहा है बराबर बगैर कोई परेशानी के, कोई वेव नहीं है, आपके वेट्स बराबर हैं सब तरफ, फॉरवर्ड आफ्ट सब जगह, तो ये स्टिल वाटर कंडीशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ बुओयेंसी इक्वल है सब तरफ। लेकिन अगर हमारा यहाँ हमने ज्यादा वेट डाल दिया, यहाँ हमने ज्यादा वेट डाल दिया, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ ज्यादा बढ़ेगी फ्रॉम फोर्स ऑफ बुओयेंसी, और इधर मैंने वेट कम किया तो यहाँ फोर्स ऑफ बुओयेंसी बढ़ जाएगी, तो मेरा शिप हॉग कर जाएगा। अभी आपको दिखाएंगे, इसको जरा सेव कर लें। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। स्टिल वाटर कंडीशंस में क्या होता है, उसके बाद हॉग सैग पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। अब ये लोडिंग कंडीशंस हमने क्या किया है कि यहाँ एंड में मैंने हेवी वेट्स डाल दिए और यहाँ मैंने वेट हटा दिया। तो यहाँ जब हेवी वेट डाल दिए तो यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मोर देन फोर्स ऑफ बुओयेंसी फॉरवर्ड एंड आफ्ट में, और मिडशिप्स में my force of gravity is less than force of buoyancy. So this condition is hogging. Now in this condition your deck plating is getting stretched. Stretching हो रहा है तो वो टेंशन में आ रहा है, बॉटम प्लेटिंग कंप्रेशन में आ रहा है क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है। तो ये हॉगिंग में हमारा कर्वेचर हो जाता है अपवर्ड, डेक का, बॉटम प्लेटिंग का भी अपवर्ड हो जाता है। कर्वेचर बेसिकली डाउनवर्ड होता है, नॉट अपवर्ड, सॉरी, डाउनवर्ड हो जाता है दोनों तरफ का, अपर डेक प्लेटिंग और बॉटम प्लेटिंग का। तो डेक इज कमिंग अंडर टेंशन, बॉटम प्लेटिंग इज कमिंग अंडर कंप्रेशन, दिस कंडीशन इज हॉगिंग। अब सैगिंग जो होता है दैट इज ऑपोजिट कंडीशन ऑफ हॉगिंग। इन सैगिंग यू आर हैविंग excess weight at the center or midships than the buoyancy, and
the weights at the ends, that is 4.5, are less as compared to your buoyancy. So the buoyancy is more at the ends than the force of gravity, and at the midships, the force of gravity is exceeding buoyancy. So the vessel is sagging. So your bottom plating is getting an upward curvature, deck plating is getting upward curvature. So your deck plating is compressing and bottom plating is having tension. So these are the two conditions in static. Static का मतलब है weight. हम move नहीं कर रहे हैं. Weight हो गया, अब हमें move उसको हटाना पड़ेगा. ये बार बार shift नहीं हो रहा है. So this is known as static stress. That means the stress is not changing unless you reduce the weight by transfer of cargo. So if the buoyancy at midships exceed the weight due to loading or when the wave, ये crest वाला हम उसके बाद आएंगे. दूसरा कंडीशन होता है हॉगिंग का, जब क्रेस्ट होता है मिडशिप्स में, मैं बाद में इसको कराऊंगा. So then your ship is going to hog. It is like a beam supported at middle and loaded at the ends. जैसे ये है कि आपने एक बीम को सस्पेंड किया हुआ है और यहाँ एक पॉइंटर लगाया, वेट इस पॉइंट पे लगाया है और ये वेट ज्यादा है तो ये इस तरह से हॉग कर रहा है. सैगिंग क्या हो जाता है? व्हेन द वेट एट मिडशिप एक्सीड्स द buoyancy. ट्रफ के बारे में अभी नहीं कराएंगे, उसके बाद कराएंगे. इट इज लाइक अ बीम सपोर्टेड एट दीज 2 पॉइंट्स और यहाँ वेट डाल दिया, ये 2 पॉइंट पे हमने वेट सपोर्ट किया और यहाँ वेट डाल दिया तो ये सैग कर जाएगा. ये वेव का काम अगली बार कराएंगे. तो ये वेव वाला जो है वो डायनेमिक होता है. दैट आई विल टीच नेक्स्ट टाइम. आज सिर्फ आपको स्टैटिक हॉग्स बता रहे हैं. So static stresses होता है when less cargo is loaded at midships as compared to the other parts of ship. And at midships, the force of buoyancy is greater than force of gravity. So the vessel is hogging. At the ends, your force of gravity is more than force of buoyancy. So the bottom plating in hogging is under compression and the deck plating in hogging is under tension. In sagging, when more cargo is loaded at midships rather than other parts of ship, the midship section will experience force of gravity more than force of buoyancy, and then the sagging takes place, while at the ends, the force of gravity is less than force of buoyancy, or the force of buoyancy is more than force of gravity at the ends. So the bottom plating is at tension and the deck is under compression. तो ये वाला आपका hog हो गया, ये वाला आपका sag हो गया. ठीक है, तो dynamic we'll be doing next time. तो आज we can have a break now. 10 बज गए हैं. Actually looking for break. So we'll have break and we'll continue with dynamic stresses at the next class. So in the meantime, you read the stresses, all the stresses, and we'll come back with the dynamic stresses next class. Okay. Okay, you can take a break Thank you. now. Thank you. Okay.